Hello guys, today we are doing MCQs of data structure. तो ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं डाटा स्ट्रक्चर के. इसमें सब कुछ इंक्लूड है, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगे मैंने बनाए. तो ये आपका जो कि आपके गेट के पेपर में, नेट के एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कॉलेज के एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, a list in which all addition to the list are made at one end and all deletion from the list are made at the other end is called dash. एक लिस्ट इज कॉल्ड डैश. एक लिस्ट जिसमें हम एक साइड से एडिशन कर सकते हैं और दूसरी साइड से डिलीशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ए क्यू, बी रूटेड लिस्ट, सी स्टैक, डी ऑल ऑफ दिस. सो इट इज़ नोन एज क्यू. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Question number second, where do we start by finding vertices that should be first in the topological order and then apply that fact that every vertex must come before its successor in the topological order? A. Depth first algorithm, B. breadth first algorithm, C. both A and B, and D is none of these. So it is a concept of breadth first algorithm. Option B is the correct answer. Question number third, a list representation in which the order of the elements is determined by an explicit link field in each element rather than by sequential position is A. array, B. sequential list, C. linked list. So it is the definition of the linked list. D. none of these. Option C is the correct answer. Question number 4, each node in a linked list must contain at least A. 3 fields, B. 2 fields, C. 4 fields, D. 1 field. So here option B is the correct answer, that is 2 field. In 2 fields, one is data field and second is pointer to node field. Okay. Now question number 5 is a variable whose size is determined at compile time and cannot be changed at runtime is A. static variable, B. dynamic variable, C. not a variable, D. none of these. So it is static variable जिसको हम चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे. जिसका साइज, अगर हम जिसका साइज चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे, उसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिक वेरिएबल. क्वेश्चन नंबर 6 इज ए कांस्टेंट इन पास्कल दैट कैन असाइन टू ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल इंडिकेटिंग दैट द पॉइंटर टू नथिंग इज डैश. A. null, B. nil, C. phi, D. all of this. So here option A is the correct answer, that is null. Question number 7, the most common hash function use the dash to compute hash address. A. division method, B. union method, C. subtraction method, D. none of these. So here option A is the correct answer. Division method is used by hash function to compute hash address. Question number 8 is the minimum number of edges in a connected cycle graph on n vertices is A. n minus 1, B. n, C. n plus 1, D. none of these. So here as number of vertices is n, so minimum number of edges is also n. So option B is the correct answer. Question number 9, an advantage of chained hash table over the open addressing scheme is A. worst case complexity of search operation is less, B. space used is less, C. deletion is easier, D. none of these. So here option B is the correct answer, that is space used is less is the advantage of chained hash table. Question number 10 is in a balanced binary tree in figure given below, how many nodes will become unbalanced when a node is inserted as a child of the node G? Now a tree is given A, B, E, C, D, F, G. If we have to add a child of G, see in this tree A, B, E, C, D, F, G. तो यहाँ पे हमने चाइल्ड इंसर्ट करना है नोड जी का. हमने यहाँ पे एक्स चाइल्ड इंसर्ट कर दिया. तो यहाँ पे अब हमें पता है कि बैलेंस फैक्टर क्या होता है, या तो ज़ीरो या -1 या +1. और अब यहाँ से देखेंगे तो कितनी नोड अनबैलेंस्ड हो जाएंगी अगर हम जी का चाइल्ड ऐड करते हैं यहाँ पे एक्स. तो यहाँ पे जो है सी का भी बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? +2, और बी का भी बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? +2, और ए का भी बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? +2. ठीक है. तो यहाँ पे ये 3 नोड क्या हो जाएंगी? अनबैलेंस्ड हो जाएंगी अगर हम यहाँ पे जी का चाइल्ड एक्स इंसर्ट करते हैं तो. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 3 नोड्स बिकम अनबैलेंस्ड.
Okay, question number 11th is the average number of key comparison done in a successful sequential search in a list of length n is a log n, b n minus 1 by 2, c n by 2, d n plus 1 by 2. So average number of key comparison done in a successful sequential search in a list of length n is n plus 1 by 2. Question number 12 is which of the following sequence denotes the पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ ट्री। ओके, तो ये ट्री हमें गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी सीक्वेंस पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस है इस ट्री की। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्री में क्या होता है, सबसे पहले हम लेफ्ट नोड कंसीडर करते हैं, फिर राइट नोड और फिर उसके बाद रूट नोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन है ए एफ ई जी सी डी बी ए, बी इज जी सी बी डी ए एफ ई, सी G C D B F E A and D is F E D G C B A। तो पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल में सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड और फिर उसके बाद क्या होगा, रूट नोड। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट नोड, फिर यहाँ पे राइट नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, रूट नोड को कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद ये लेफ़्ट नोड तो हो गई, ठीक है, इसकी राइट डी, तो फिर उसके बाद रूट नोड बी, फिर इसकी बी यहाँ आ गए हम, तो फिर उसके बाद हम क्या कंसीडर करेंगे, ये तो क्या है, रूट नोड है और ये क्या है, राइट नोड है, तो इनसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, लेफ़्ट नोड। तो लेफ़्ट नोड क्या है, एफ, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, राइट नोड और फिर उसके बाद क्या आएगा, रूट नोड। तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज ए बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, तो ये नंबर है हमारे पास, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट रिस्पेक्टली आर। ठीक है, अगर हम इन नंबर से ट्री बनाते हैं, अगर हम इन नंबर्स को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में अरेंज करके एक ट्री बनाते हैं, तो लेफ़्ट सब ट्री में कितने नंबर ऑफ़ नोड्स आते हैं और राइट सब ट्री में कितने नंबर ऑफ़ नोड आते हैं। ठीक है, ये बताना है हमें। तो हम ये कैसे बता सकते हैं, ये तो हम ट्री बनाएंगे उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि कितने नोड आए। तो हम देखते हैं कि कैसा ट्री बनता है। तो सबसे पहले देखो कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले क्या लेते हैं हम, लेफ़्ट नोड, फिर होता है रूट और फिर होता है राइट, मतलब सब ट्री की राइट नोड। ओके, तो सबसे पहले क्या है 50, फिर 15, फिर 62। तो हम ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो 50 हमने रूट नोड ऐड कर दिया, फिर 15 लेफ़्ट पे जाएगी, फिर 62 वो राइट नोड बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या, तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये एक रूल तो सबको पता ही होगा कि जो लेफ़्ट नोड होती है वो रूट नोड की कंपैरिजन में कम साइज़ की छोटी होती है, और जो राइट नोड होती है उसका साइज़ रूट नोड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो 5 को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे, और 50 को कहाँ इंसर्ट कर देंगे, 20 की साइड पे। अब नेक्स्ट क्या है 58 और 91। अब 58 और 91 यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि रूट नोड से बड़ी कैसे हो जाएगी, लेफ़्ट नोड नहीं हो सकती ना, तो हम उनको यहाँ इंसर्ट करेंगे। बड़े वाली को राइट नोड बना देंगे, छोटे वाली को लेफ़्ट नोड बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने पूरा ट्री बना लिया इन सब नंबर से जो हमें दिए हुए थे, और बनाया कैसे है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में बनाया। ठीक है, और लास्ट में हमने देखना क्या है कि कितने नोड हैं राइट और लेफ़्ट में। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं। तो अब ये रूट नोड है, इस रूट नोड के देखो लेफ़्ट में तो यही है और राइट में ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 क्या हो गई, लेफ़्ट में हो गई, और राइट में कितनी हो गई, 1 2 3 4। सो हियर आंसर इज 7 and 4। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 7 and 4। ओके, समझ आ गया अच्छे से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 14 is a binary search tree is used to locate the number 43. Which of the following prop sequence is possible?
अब बाइनरी सर्च ट्री में एक कंडीशन तो सबको पता ही है, लेफ्ट वाली सब ट्री की सब ट्री का जो चाइल्ड रूट नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड होता है उसकी क्या होती है, साइज स्मॉलर होती है और राइट की ग्रेटर होती है, ठीक है। तो हमने 43 को इंसर्ट करना है जी, हम कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए भी वैसे ही ट्री बना के देखना पड़ेगा और कौन सी सीक्वेंस पॉसिबल है तो आपको पता चल जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए बाइनरी सर्च ट्री कंटेन्स द वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8. द ट्री इज ट्रावर्स्ड इन प्री ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ए वैलिड आउटपुट, ठीक है। तो इसका वैल्यूज़ क्या कंटेन कर रहे थे, ये वैल्यू कंटेन कर रहे थे, और ट्री को कैसे ट्रैवर्स करना है, प्री ऑर्डर में करना है, तो कौन सा आउटपुट वैलिड होगा, ठीक है। तो कौन सा आउटपुट वैलिड होगा, ये वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, ये वाला आउटपुट वैलिड होगा 5 3 1 2। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। तो 5 3 लेफ्ट हो गई, फिर 1 फिर लेफ्ट हो गई, फिर राइट आ गई 2, फिर ये भी राइट हो गई 4, फिर 7 भी राइट हो गई और 6 लेफ्ट और 8, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज द कंकैटिनेशन ऑफ टू लिस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड इन order of one time. Which of the following implementation of a list should be used? A. Singly linked list, B. doubly linked list, C. circular doubly linked list, D. array implementation of list. So here option B is the correct answer, doubly linked list. Question number 17 is let G be a graph with 100 vertices, number 1 to 100. Two vertices I and J are adjacent if I minus j is equal to 8 या फिर I minus j is equal to 12. The number of connected components in G is, हमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहले क्या कह रखा है, दो वर्टिसेस हैं I एंड J, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है, या तो I माइनस जे में 8 का डिफरेंस होगा या फिर I माइनस जे में 12 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम ऐसे सीक्वेंस ले लेंगे तो 8 8 के डिफरेंस पे, तो जब हम 8 में लेंगे बाय यूजिंग I माइनस जे इज इक्वल टू 8, वी हैव कवर्ड 8 वर्टिसेस सेट, ठीक है। तो हमें कितने सेट्स मिलते हैं, 8। बट अगर हम I माइनस जे इज इक्वल टू 12 को यूज़ करेंगे, वी कैन सी द वर्टिस 1 इज कनेक्टेड टू 13, 2 किससे कनेक्ट होगा 14, क्योंकि कितने कितने का डिफरेंस है, 12 12 का है ना, 3 किससे होगा 15 से एंड 4 किससे होगा 16 से। सो द टॉप वर्टेक्स सेट्स आर कनेक्टेड टू बॉटम 4 वर्टेक्स सेट, तो हमें 4 कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलेंगे। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is which of the following statement is false? A tree with n nodes has n minus 1 edges. B, a label rooted binary tree can be uniquely constructed with given its post order uniquely and pre-order traversal results. C, a complete binary tree with n internal nodes has n plus 1 leaves. D, the maximum number of nodes in a binary tree of height h is 2n plus 1 minus 1. तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n नोड्स हैज़ n प्लस 1 लीव्स, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A, B trees are used for storing data on disk and B plus trees are used for main memory. B, range queries are faster on B plus trees. C, B trees are for primary indices and B plus tree are for secondary indexes. D, the height of a B tree is independent of the number of records. So इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th इज इफ वन यूजेस स्ट्रेट टू वे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम टू सॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर कोई मर्ज सॉर्ट टू वे एल्गोरिथम का यूज़ करता है इन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, तो आगे क्वेश्चन क्या है ये देखें। देन द ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट आफ्टर द सेकेंड पास ऑफ द एल्गोरिथम, क्या होगा ऑर्डर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं।
तो इसमें क्या होता है, मर्ज सॉर्ट में पहले तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर उसको जब सॉर्ट हो जाता है तो फिर उसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट पार्ट अप्लाई करेंगे तो यूँ आ जाएगा ना, पहले इन दोनों को देख लिया, इन दोनों को लिया, और जैसे ये 12-7 था तो हमने 7-12 कर दिया, स्वैप कर दिया। यहाँ पे 40-30 था तो 30-40 कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पास। फिर सेकेंड पास में इन दोनों को मर्ज कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. कंसीडर द फॉलोइंग नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज x, y, z indicates y and z are the left and right subtrees respectively of node x. Note that y and z may be null or further nested. Which of the following represents a valid binary tree? ठीक है, हाँ, तो इनमें से कौन सा वैलिड बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमें ट्री बना के देखना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से कर सकते हैं ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब ज़रा। तो हमारे पास दो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। एक तो बाइनरी ट्री में दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, दो से कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और सेकंड क्या, टू कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम द गिवन सीक्वेंसेस इनर मोस्ट पेरेंट थीसिस शुड बी वर्क फर्स्ट। मतलब जो अंडर के पार्ट्स में ब्रैकेट में दे रखे हैं उनको हम पहले कंसीडर करेंगे। तो अगर हम ट्री बनाते हैं उनसे तो ऐसा बनेगा। तो अगर हम इनकी ऑर्डर सीक्वेंसेस लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। 1 2 3 4 और 5 6 7, क्योंकि पैरेंथेसिस है तो उसको हम पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22 is, let G be an undirected connected graph with distinct edge weight. Let E max be the edge with minimum weight. Which of the following statement is false? A. Every minimum spanning tree of G must contain E min. B. If E max is in a minimum spanning, then its removal disconnects G. C. No minimum spanning tree contains E max. ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो ई मिन ही कंटेन करेगा, वो ई मैक्स भी कंटेन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि फटाफट से ये हो जाए और वीडियो शॉर्ट बने, ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। Now question number 23 is, let G be an undirected graph. Consider a depth first traversal G and let T be the resulting depth first search tree. Let U be a vertex in G and let V be the first new unvisited vertex after visiting U in the traversal. Which of the following statement always true? U V must be an edge in G and U is a descendant of V in T, ठीक है। देखो, let G क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। कंसीडर ए डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल कंसीडर कर लिया। G जिसमें क्या है, T क्या है, रिजल्टिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री है, और U भी क्या है, U है वर्टेक्स इन G एंड V भी क्या है, न्यू फर्स्ट न्यू अनविजिटेड वर्टेक्स है, तो वो भी वर्टेक्स ही ना, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगी, तो यही ट्रू होगी कि U और V क्या है, दोनों एज हैं G में, और U क्या है, डिसेंडेंट ऑफ V है इन T। T क्या है, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च, रिजल्टिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री है, ओके। सो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इज, कंसीडर द फॉलोइंग ट्री। इस ट्री को कंसीडर करना है। इफ़ द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल गिव्स दिस, देन द लेबल नोड्स ऑफ द नोड्स 1 2 3 विल बी। अच्छा, तो मतलब अगर इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब ऐसे ही दिया हुआ है ए बी में, तो हम इसका क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जैसे ये है वैसे ही वो होगा। ओह सॉरी, इनको 1 2 3 के मैटर में नहीं बता रखा, इनको ABCD में ही बता रखा है। जो मिनट दे रखी है वहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए, उस
जो हमें सीक्वेंस दे रखी है वहाँ पे उसको हमने पोस्ट ऑर्डर में करना है, ठीक है, ये मतलब था इसका। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द गिवन बाइनरी ट्री विल गिव द फॉलोइंग सीक्वेंस 4 5 2 6 7 3 1। मतलब हम ट्री की अगर सीक्वेंस करते हैं तो ये आती है हमारे पास। अब हम इसको कंपेयर करेंगे सीक्वेंस के साथ। हमारी सीक्वेंस क्या गिवन थी, ए बी माइनस सी डी स्टार प्लस, ठीक है। तो वी गेट 1 किसके इक्वल हो गया प्लस के, 2 किसके इक्वल हो गया माइनस के, 3 किसके इक्वल हो गया स्टार के, 4 किसके इक्वल हो गया ए के, 5 किसके इक्वल हो गया बी के, 6 किसके इक्वल हो गया सी के, ठीक है। तो ये करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 25th is the initial configuration, or 25th is the initial configuration of a queue is ABCD. A क्या है, फ्रंट एंड है। टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन DCBA1 नीड्स ए मिनिमम ऑफ, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ABCD है, DCBA चाहिए, तो पहले 3 हटा के और फिर से 3 जोड़ने पड़ेंगे कि लास्ट वाला तो सेम ही रहेगा। तो 3 डिलीशन होंगे और 3 ही एडिशन होंगे। क्वेश्चन नंबर, so here option C is the correct answer. Question number 26 is the number of possible order trees with 3 nodes A B C is. अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, the number of, जब हमें ऑर्डर ट्रीज कैलकुलेट करने होते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और अगर हमें नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कैलकुलेट करने होते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, पॉसिबल ऑर्डर ट्रीज कैलकुलेट करने हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इज गिवन 2 सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज m and n respectively. The number of comparison needed in the worst case by the merge sort algorithm will be, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडिड कब नीडिड हो, वर्स्ट केस में, किसके, वर्स्ट केस में मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, m क्रॉस n माइनस 1। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल एल्गोरिथम tn क्या दे रखा है, tn माइनस 1 प्लस n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, द ऑर्डर ऑफ दिस एल्गोरिथम इज क्या होगा, log n, ओके। Question number 29 is there are 4 different algorithms A1, A2, A3, A4 to solve a given problem with order. There are 4 different algorithms हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है। To solve a given problem with the order दे रखे हैं इन चारों एल्गोरिथम के, ठीक है। तो विच इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम बेस्ट एल्गोरिथम का कैसे पता लगाएंगे, इनके ऑर्डर से पता लगाएंगे कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, और उसका कैसे पता चलेगा, हमें इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पता चलेगा। तो अब हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो जो मतलब सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वेरियस कंपैरिजन, वेरियस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी भी हमारे पास है, सबका ऑर्डर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो इनमें से जो हम देखते हैं सबसे कम टाइम लेने वाली कौन सा ऑर्डर है, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, log n, log n, n log n और n बाय log n, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, और सॉरी ये भी है, इसमें A2 की वैल्यू ये है, ये भी है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो क्या है, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और ये किसकी वैल्यू है, A2 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A2, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 30 इज द नंबर ऑफ स्वैपिंग नीड टू सॉर्ट द नंबर्स 8, 22, 7, 9, 31, 19, 5, 13 इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट इज, ठीक है। कितनी स्वैपिंग हमें चाहिए होंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉरी। ये देखो, बबल सॉर्ट में सबसे पहले क्या आता है, बबल सॉर्ट स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जब भी मतलब स्टार्ट करना होता है, अगर वो दो ठीक है तो हम नेक्स्ट रो को ले लेते हैं, अगर वो दो सॉर्टेड हैं तो हम नेक्स्ट रो को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर है, ठीक है। तो A22
है सॉर्टेड है, A to 22 तो सॉर्टेड ही है, ठीक है। पहले हमने इन दो को देखा, फिर उसके बाद ये दोनों तो सॉर्टेड है तो हमने इसको हटा दिया, इन दो को देखा, अब ये तो सॉर्टेड नहीं है तो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, स्वैपिंग। तो एक स्वैपिंग तो यहाँ हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 8, 7, 22, तो ये भी सॉर्टेड नहीं है। 8 और 7 फर्स्ट टू देखे हमने, तो यहाँ पे सेकंड स्वैपिंग हुई, 7 और 8 आएगा, ठीक है। तो ये स्वैपिंग हो गई। अब ये ठीक है, तो हमने नेक्स्ट टू देख लिया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, तो हमने नेक्स्ट टू देख लिया। तो फिर अब देखो यहाँ पे 9 क्या है, छोटा है तो पहले आएगा, यहाँ पे थर्ड स्वैपिंग हो गई। फिर से अब हमने 9 आगे आ गया, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। तो हमने ये दो देखा, ये भी ठीक है, तो हमने क्या देखा, नेक्स्ट टू देख लिया। अब 19 क्या है, आगे आना चाहिए, तो यहाँ पे एक स्वैपिंग हुई, फोर्थ स्वैपिंग, फिर यहाँ से यहाँ पे स्वैपिंग हुई, फिफ्थ स्वैपिंग, ठीक है। तो स्वैपिंग करके हमारे पास ये आ गया, फिर फिफ्थ 5 के लिए स्वैपिंग होगी क्योंकि 5 सबसे आगे आएगा। ऐसे करेंगे तो यहाँ 5 स्वैपिंग यहाँ तक हो गई थी, 6th, 7th, 8, 9, 10th, 11th, ठीक है। और फिर उसके बाद 13 भी है लास्ट में, यहाँ तक सॉर्टेड हो गया सब, 13 रह गया लास्ट में। अब 13 क्या आएगा, यहाँ आएगा, उसके लिए 3 स्वैपिंग नीडेड होंगी, तो टोटल स्वैपिंग हमारे पास कितनी हो रही है, 14। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी ट्रीज विथ 3 नोड्स। अब मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि ऑर्डर ट्रीज का ये होता है और बाइनरी ट्रीज का ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री में हम कौन सा वाला फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल वाला। ऑर्डर ट्रीज में हम यहाँ पे एन फैक्टोरियल नहीं लेते, बाइनरी ट्री है तो हम यहाँ पे एन फैक्टोरियल लेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे हम सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बाइनरी ट्री कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे भी बाइनरी ट्री, तो सेम कर देना, ठीक है। यहाँ पे 14 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉर्टिंग इज यूजफुल फॉर ए रिपोर्ट जनरेशन, बी मिनिमाइजिंग द स्टोरेज नीडेड, सी मेकिंग सर्चिंग ईजियर एंड एफिशिएंट, डी रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज इजली, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी डी तीनों के लिए यूजफुल होती है सॉर्टिंग, तो ए सी डी तीनों करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो गाइस देखो, A internal sorting is used if the number of items to be sorted is very large. External sorting is used if the number of items to be sorted is very large. External sorting needs auxiliary storage. ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने ये पढ़ा ही नहीं क्योंकि हमें पता है ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। इंटरनल सॉर्टिंग कब यूज़ होती है, जब वो स्मॉल हो, ठीक है, और इंटरनल सॉर्टिंग तो एक्सोली स्टोरेज यूज़ नहीं करती। ओके, तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 35, अ सॉर्टिंग टेक्निक दैट guarantees that records with the same primary key occurs in the same order in the sorted list as in the original unsorted list is said to be dash a stable, ठीक है। इस सॉर्टिंग टेक्निक्स गारंटीज क्या करती है, रिकॉर्ड को स्टेबल वे में मेंटेन करके रखती है, विद द सेम प्राइमरी की ओकर्स इन द सेम ऑर्डर in the sorted list as in the original unsorted list is said to be stable, ठीक है, स्टेबल वे में रखती है उसको। इफ क्वेश्चन नंबर 36, इफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये सारे ऑपरेशन हैं, परफॉर्म करे जाएं, तो सीक्वेंस जो पॉप्ड आउट होके आएगी वो हमारे पास क्या आएगी। तो पहला क्या है, पुश 1, डब्बे में डाला, पुश 1 डाल दिया, फिर पुश 2 2 डाल दिया, फिर पॉप करा जा रहा है। तो पॉप करा जा रहा है तो पहले कौन निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि 2 हमने बाद में पुश किया है, जो बाद में पुश होता है वहीं पहले निकलता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर पॉप करा जा रहा है, फिर क्या होगा, 1 निकल आएगा, फिर उसके बाद 2 पुश कर रहे हैं और फिर पॉप कर रहे हैं, फिर 2 निकल आएगा। सॉरी मैंने ये पढ़ा ही नहीं, पहले पुश 1 करा, पुश 2 करा, ठीक है, फिर पॉप करा तो 2 निकल आया, फिर पुश 1 करा, पुश 2 करा, फिर पॉप पॉप पॉप, तो क्या निकल के आएंगे, लास्ट वाले हमने क्या क्या ऐड करे हैं, 1 1 और 2, फिर दोबारा पुश 2 करा और पॉप कर दिया, तो फिर पुश 2 करा तो पॉप करा तो 2 निकल के आएगा। तो सीक्वेंस क्या है, ये है,
हमने ऐसे ऐसे उसको अंदर पुश करते गए। देखो पहले है पुश 1 को डाला, फिर है पुश 2 को डाल दिया, ठीक है, 1 और 2 को डाल दिया, फिर पॉप करा तो क्या निकल के आया, 2 निकल के आ गया। फिर उसके बाद पुश करा 1 को पुश कर दिया, फिर पुश करा 2 को पुश कर दिया, फिर 3 बार पॉप करा, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 2 1 2 2 1 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो 2 1 2 पहले क्या निकल के आया था 2 और फिर निकला 2 1 2, फिर उसके बाद एक बार पॉप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं 2 और फिर उसको पॉप कर रहे हैं तो फिर 2 निकल के आएगा। तो ये सीक्वेंस हो जाएगी हमारे पास पॉप वाली, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी नॉन लीफ नोड हैज़ नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज कॉल्ड ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। सच ए ट्री विद 10 लीव्स हैज़ एग्जैक्टली कितनी नोड्स होंगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n-1 का। तो यहाँ पे n क्या है, हमारे पास 10 है, तो 2 × 10-1 हमारे पास 19 नोड्स होंगी एग्जैक्टली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम सॉल्व ऑल द पेयर शॉर्टर पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, तो कौन सा एल्गोरिथम होता है, फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। Question number 37, stack A has the entry A B C with A on the top, B में B क्या है, empty है, and entry popped out of stack A can be printed immediately और pushed out to stack B। मतलब एक स्टैक है A, उसके पास A B C है, B जो है वो empty है। जो अब हम एंट्री निकाल रहे हैं A में से, या तो हम उसको सीधा प्रिंट कर सकते हैं या फिर हम उसको B में पुश कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। पर जो हम बी से एंट्री निकालेंगे ना, वो हमेशा प्रिंट होनी चाहिए। इन दिस अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन ऑफ द ए बी सी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास ए ये है, तो ये गलत हो गया था, ये मत देखो, ए ये है हमारे पास। ठीक है, ए बी सी दे रखे हैं। ठीक है, फॉर 3 एंट्रीज, 3 एंट्री के लिए हमारे पास ये सीक्वेंस बनती है। वह कैसे बनती है, हम एक के लिए करके देख रहे हैं, बी ए सी के लिए करके देख रहे हैं, बाकी सारी सेम है, बट हमारी सीक्वेंस एक नहीं बनती। क्या नहीं बनती, सी ए बी, वो भी कैसे नहीं बनती वो भी मैं बताती हूँ आपको। देखो पहले हमने पॉप एलिमेंट ए, बी ए सी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पॉप एलिमेंट ए फ्रॉम स्टैक ए के एलिमेंट ए बी सी में तो तीनों हैं, एक ए में से ए को पॉप करा और उसको पुश कर दिया बी में। ठीक है, तो वो तो पुश ही हो गया बी में, तो उसकी हमने प्रिंट नहीं करी। ठीक है, फिर हमने पॉप एलिमेंट करा, किसको, बी को करा और प्रिंट कर दिया। फिर पॉप एलिमेंट ए को निकाला, कहाँ से निकाला, बी में से निकाला और उसको प्रिंट कर दिया। तो पहले क्या निकाला था, बी निकाला था ए में से, अब ए निकाला है बी में से, जो कि हमने पहले पुश करा था। ठीक है, अब क्या है, पॉप एलिमेंट सी फ्रॉम ए एंड प्रिंटेड। ठीक है, तो ये कहा गया हमारे पास बी ए सी आ गई। अब सी ए बी क्यों नहीं हो सकता, वो देख लो गाइस, सिमिलर। ठीक है, तो बाकी सबके लिए तो सिमिलर हो जाएगा, अब सी और बी क्यों नहीं हो सकता वो देखो। अब देखो, अगर हमें सी ए बी करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम ए निकालना पड़ेगा। ए को हमने प्रिंट कराना नहीं है, क्योंकि पहले क्या होना चाहिए, सी ए बी होना चाहिए। चलो ए को हमने दूसरे वाले डब्बे में डाल दिया बी में। ठीक है, अब हम बी आ गया, अब बी को भी प्रिंट नहीं कराना, क्यों, क्योंकि पहले सी होना चाहिए, तो बी को दूसरे डब्बे में डाल दिया बी वाले में, क्यों, एम्प्टी था, पहले ए डाला फिर डी बी डाल दिया। अब हमें सी ए बी प्रिंट कराना है, तो अब हम सी को निकाल रहे हैं और सीधा प्रिंट करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले सी है। तो हम बी वाले डब्बे में से निकाल के जब प्रिंट कराने लगेंगे तो पहले क्या आएगा, बी ए, तो क्या बन गया, सी बी ए बन गया। तो सी ए बी वाली सीक्वेंस पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। तो गाइस, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, जो कि ये सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरे दैट इज यूज्ड इन ए प्रोग्राम विल बी स्टोर्ड इन, किस में स्टोर होती है, डॉप वेक्टर में स्टोर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, स्पार्स मैट्रिसेस हैज मैनी जीरो एंट्रीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 42. The linked list of sparse matrix is superior to the generalized dot vector method because it is
कंसेप्चुअली ईजियर भी है और डायनामिक भी है, ठीक है। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 43 में पोस्ट फिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स दे रखी है और पोस्ट फिक्स करना है, तो क्या कौन सी करेक्ट होगी, ए करेक्ट होगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द ऑर्डर ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का ऑर्डर कितना, ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, log n, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, द एवरेज सर्च टाइम ऑफ हैशिंग विद लीनियर प्रोबिंग विल बी लेस इफ द लोड फैक्टर इज फार लेस दैन 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। तो इसे ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, ठीक है। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर बैचिंग प्रोसेस के लिए भी सुटेबल होती है, और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है बोथ बैच एंड इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग। बट ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। सिक्वेंशियल फाइल प्रोसेसिंग इज सुटेबल फॉर इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग के लिए नहीं होते। इंडेक्स्ड होती है बट सिक्वेंशियल नहीं होती, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, द डेप्थ ऑफ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n नोड्स। तो क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, log n + 1 - 1। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रावर्सल टेक्निक लिस्ट द नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्स अबाउट द ट्राई इंडेक्सिंग आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी डी सारी स्टेटमेंट ट्रू है एक्सेप्ट बी फॉल्स है। बी में क्या है, इट इज़ ए सर्च ऑफ ऑर्डर एम, ये ऑर्डर एम का सर्च ट्री ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। तो ये सर्च ट्री एम एरे ट्री है ये, लेकिन ये सर्च ट्री नहीं है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम का। क्वेश्चन नंबर 50, प्री ऑर्डर इज सेम एज डैश, किसकी तरह सेम है, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, स्टैक कैन नॉट बी यूज टू डैश। ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बट CPU यार ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट रिसोर्सेज लाइक CPU नहीं, ये तो कहाँ कौन सा टॉपिक आ गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट फॉल्स है। ए हैश टेबल हैज स्पेस फॉर 100 रिकॉर्ड्स, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिफोर द टेबल इज 10% फुल। मतलब एक हैश टेबल है, उसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बतानी है कब, जब टेबल 10% फुल हो जाती है उससे पहले पहले की, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन, अगर हमारे पास एक ही रिकॉर्ड होगा तो प्रोबेबिलिटी तो कोलिजन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर इफ़ देर इज़ ओनली 1 रिकॉर्ड तो कोलिजन ही नहीं होगा। अगर मतलब दूसरा रिकॉर्ड देखे जाए देन अगर होता भी है तो क्या अगर 0 रिकॉर्ड होएगा तो कोलिजन नहीं होगा। अगर 1 रिकॉर्ड होएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कोलिजन की 1/100। 2 होगा तो क्या होगी 2/100। अब हमें 10% से पहले, मतलब 100 का 10 क्या हो गया, 10 हो गया ना, तो 10 से पहले पहले की निकालनी है, मतलब हमें 9 तक की निकालनी है। तो 9 के लिए क्या होगा 9/100 होगा, पर 9 तक निकालनी है, सिर्फ 9 की नहीं निकालनी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ की जो हम ऐड करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.45 आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्स अबाउट द ट्राई इंडेक्सिंग आर ट्रू। तो इट इज़ एफिशिएंट इन डीलिंग विद स्ट्रिंग्स ऑफ वेरिएबल लेंथ, ट्रू है। इट इज़ एफिशिएंट इफ़ देयर आर फ्यू नंबर ऑफ डाटा आइटम, नहीं, फॉल्स है। लार्ज डाटा आइटम के लिए भी एफिशिएंट है ये। C, the number of disk access cannot exceed the length of a particular string that is search, नहीं, exceed कर सकता है, ट्रू है ये, लेंथ एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और D, इट कैन हैंडल इंसर्शन एंड डिलीशन एफिशिएंटली एंड डायनेमिकली। तो ऑप्शन A, C, D तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन ए सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज, क्या है, n-1, ओके। द रिकरेंस रिलेशन दैट अराइजेज इन अ रिलेशन विद द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो कौन सा रिलेशन अराइज होता है, हमें याद है, Tn is equal to Tn/2 plus k, where k is a constant. Question number 56.
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक इज यूज इन द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में कौन सी टेक्निक यूज होती है? डिवाइड एंड कॉन्कर। क्वेश्चन नंबर 57, लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर डैश। किस लिए स्टेबल नहीं होती? बाइनरी सर्च के लिए स्टेबल नहीं होती। इंसर्शन सॉर्ट और रेडिएक्स सॉर्ट और पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन के लिए ये सुटेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है कि गिवन द prefix and postfix works of a binary tree cannot be unique constructed। क्यों यूनिक कंस्ट्रक्टेड हो सकते हैं? ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। अब 59, द नंबर ऑफ एजेस इन अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री d एंड n वर्टिसेस इज। तो क्या होते हैं नंबर? कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं? n/2। ओके, in a circular linked list organization, insertion of record involves the modification of 2 pointer। ठीक है, question number 66 is the concatenation of two lists is to be performed in order of one time. Which of the following implementation of a list could be? तो ये किसकी implementation है? circular doubly linked list। okay, question number 67, which of the following file organization is preferred for secondary storage key processing। कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करी जाती है? इन्वर्टेड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्टफिक्स फॉर्म एफिशिएंटली। तो ऑपरेटर स्टैक एंड ऑपरेटर स्टैक। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो दो यूज होते हैं, ग्राफ भी यूज होता है और प्लेक्स भी यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इज ए बाइनरी ट्री हैज एन लीफ नोड, the number of nodes of degree 2 in this tree is n-1। ठीक है, ये सारे थ्योरी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। जो मेरे को नेसेसरी लगे मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर रखा है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी आपका। ठीक है, और आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूँगी। ओके, question number 71 is the minimum number of edges in a connected cyclic graph on n vertices is n। question number 72, an adjacent matrix representation of a graph cannot contain information of nodes की कंटेन करते हैं, एजेस की भी कंटेन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एज भी बताते हैं, बट पैरेलल एजेस की इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करते। द बेस्ट एवरेज बिहेवियर इज शोन बाय क्विक सॉर्ट। ओके, स्टैक इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, LIFO भी बोलते हैं इसे। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 75 इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च की क्या है? ऑर्डर ऑफ n। बाइनरी सर्च की क्या है? ऑर्डर ऑफ log n। बबल सॉर्ट की क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, मर्ज सॉर्ट की क्या है? ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, तो ये सारी कम्प्लेक्सिटी आपको याद करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं MCQs में इस पे बेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 79 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप। तो ग्राफ नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 है द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ दिस इज, इसकी पोस्टफिक्स फॉर्म क्या है? तो AB स्टार CD डिविजन नॉट प्लस बाद में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, बाइनरी सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉगरिथमिक सर्च भी बोल सकते हैं इसको, और हम हाफ इंटरवल सर्च भी बोल सकते हैं। तो A और B बहुत करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, इन बाइनरी सर्च आफ्टर एवरी आइटरेशन सर्च स्पेस इज रिड्यूस्ड बाय। तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर है, दैट इज n/2। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए क्विक सॉर्ट। तो क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज हैश टेबल। हैश टेबल की डेफिनेशन क्या है? ए स्ट्रक्चर दैट मैप्स कीज टू वैल्यूज नॉट वैल्यूज टू के। कंफ्यूज मत होना है A और B में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, इफ several elements are
competing for same bucket in a hash table। मतलब एक जैसे उसमें 100 रिकॉर्ड्स थे टेबल में, तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं, पर दूसरा एलिमेंट आके कह रहा है कि मुझे तो भाई यहीं रहना है, यहीं पे ही आना है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कोलिजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द सर्च कम्प्लेक्सिटी इन डायरेक्ट एड्रेसिंग? तो ऑर्डर ऑफ 1। ओके, अ बाइनरी सर्च ट्री हुज लेफ्ट एंड राइट सेपरेटली डिफर इन हाइट। तो उसको सिंपल सी बात है, किसकी डेफिनेशन है, एवियल ट्री की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स आर एडिड फ्रॉम वन एंड रिमूव फ्रॉम अनदर। किसकी डेफिनेशन है, क्यू की। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट, मतलब हर एक एलिमेंट को एक बार प्रोसेस करना या विजिट करना क्या कहलाता है, ट्रावर्सल। Question number 90th, when the user try to delete the element from the empty stack, then the condition is state to be, क्या बोलते हैं, underflow। But क्वेश्चन नंबर 91 देखा जाए, इफ़ द साइज ऑफ स्टैक क्या है, 10th, अगर हमें 11th एलिमेंट उसमें ऐड करना है, 11th भी हम कह रहे हैं कि साइज़ तो 10 ही है, पर हम कह रहे हैं कि हमें 11th ऐड करना ही है इन द स्टैक में, तो कंडीशन, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ओवरफ्लो। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया अंडरफ्लो फ्लो और ओवरफ्लो में। क्वेश्चन नंबर 92 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर? तो कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या है, asynchronous data transfer। Question number 93 is, which data structure is mainly used for implementing recursive algorithm? ठीक है, तो stack यूज होता है उसके लिए। Question number 94, which of the following is in fixed notation? ठीक है, इसी के बीच में है ना सिम्बल्स, तो ये कौन सी है, in fixed notation। क्वेश्चन नंबर 95, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए स्टैक। 2 स्टैक रिक्वायर होते हैं, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, द हाउ मेनी क्यूज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए स्टैक? 2 क्यू रिक्वायर होते हैं, एक पुश के लिए, एक पॉप के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, विच डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू? तो हीप इज द बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायोरिटी क्यू। सॉरी, टिक करना भूल गई, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 98, which of the following is the time complexity to search an element in the linked list? The order of n. Question number 99, what is the maximum number of children a node can have in a binary tree? सबको पता है, 2 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ग्रीडी एल्गोरिथम का। ठीक है, तो गाइस 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इनमें से जौन से क्वेश्चन को मैंने को एक्सप्लेन करने की नीड लगी थी उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया ज़्यादा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। पर गाइस प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट MCQs के ऊपर, DBMS के ऊपर, और जो भी जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं UGC नेट के, गेट के, मतलब जितने भी MCQs वाले टॉपिक्स हैं मैं सब पे ऐसी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस।